Hello friends, today we are going to revise offences and penalties under CGST Act. In every attempt there is a question from this chapter either in MCQ section or in 70 marks section. So you should not skip this chapter. So let's revise this chapter. To remember penalties from this chapter, you should keep revising this chapter again and again. It's not a one-time revision. You should revise it again and again so you will remember it in exams. Range of sections for this chapter is from section 122 to section 138. Now first section, section 122, penalty for certain offences. Under section 122(1), there are 21 offences for which penalty has been mentioned, and this section is applicable to any taxable person. So this section is applicable to the person who is liable to get registered under GST Act and also to the registered person. So let's see these 21 offences. I have made the bifurcation of these offences under 5 headings so it's easy to remember these offences. First is related to fake or wrong invoices. Under this head there are 3 offences. First is supplies of goods and services without any invoice. Second is invoice without supply of goods and services. And third is invoice using registration number of another person. Now second is related to fraud. And there are 3 offences. First is submitting false information while registering under GST. Second is submitting fake financial records or documents or filing the false returns. Third is submitting false information during proceedings or doesn't providing any information. Third heading is related to tax evasion. And there are 5 offences. First is collects the GST but doesn't submit it to government within 3 months. मतलब GST आप collect करते हो और doesn't submit it to government within 3 months. Second is collection in contravention of provisions and fails to pay to government within 3 months. मतलब आपने contravention में भी collect किया तो भी आपको pay करना होगा government को. Third is obtains refund of CGST, SGST, NEB by fraud. Fourth is related to ITC without actual receipt of goods. Fifth is deliberately suppresses sales to evade the tax. तो पहले 2 related to collection of GST, third is related to refund, fourth is related to ITC and fifth is related to suppression of sales. Under fourth heading, offences are related to supply or transport of goods. There are 3 offences. First is transporting goods without proper documents. Second is supplying or transporting goods which he knows will be confiscated. And third is tampers or destroys goods seized. तो ये कौन से 3 है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है गुड्स विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये कॉन्फिस्केट होने वाला है ये पता है इसलिए इसके बाद भी कर रहा है, और थर्ड इज जो भी गुड्स सीज किए हैं उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है. Fifth heading is others and there are 7 offences. First is he doesn't register even though he is required by law to register. Second है third related to TCS and TDS. यहाँ पे वो TCS TDS जो भी है एक तो वो कलेक्ट कर नहीं कर रहा है और डिडक्ट नहीं कर रहा है और जो भी अमाउंट है वो लेस देन रिक्वायर्ड अमाउंट है. तो सेकेंड इज ही डजंट कलेक्ट टैक्स और कलेक्ट्स लेस अमाउंट देन रिक्वायर्ड. थर्ड इज ही डजंट डिडक्ट टैक्स और डिडक्ट्स लेस अमाउंट देन रिक्वायर्ड. Fourth is he destroys any evidence. Fifth is obstruct officer during audit by tax authorities. मतलब टैक्स authorities के ऑडिट जो है उसमें वो डिस्टर्बेंस ला रहा है. Sixth is he doesn't maintains all the books of accounts required. And seventh is related to ISD. Being an ISD, he takes or distributes ITC in violation of rules. So these are 21 offences. तो आपको ये अच्छे से याद रखने हैं तो आप फिर से एक बार ये देख लीजिए. नाउ पेनल्टी फॉर दिस 21 ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 122(1). इट इज ₹10,000 और द अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड, TDS TCS नॉट डिडक्टेड और शॉर्ट डिडक्टेड और ITC रॉन्गली अवेल्ड और रिफंड अवेल्ड फ्रॉडुलेंटली. इसमें से आपका जो भी केस है वो विच एवर इज हायर, मतलब 10,000 और जो भी फ्रॉड वाला अमाउंट है
whichever is higher. Now, penalties for offences under section 122(2). This section is for any registered person. Earlier section 122(1) was for any taxable person, but this is for any registered person. So it's better to remember penalties by sections. तो ये है सेक्शन 122 सबसेक्शन 2 और ऑफेंसेस भी 2 ही बताए गए हैं यहाँ पे. तो फर्स्ट इज सप्लाइज गुड्स और सर्विसेज और बोथ फॉर विच टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, इरोनियसली रिफंडेड. फर्स्ट इज रिलेटेड टू टैक्स and refund, and second is related to ITC wrongly availed or utilized. तो यहाँ पे पेनल्टी के लिए 2 बाइफर्केशंस किए हैं. फर्स्ट इज विदाउट फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट एंड सपरेशन ऑफ फैक्ट्स, एंड सेकंड इज फॉर द रीजन ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट एंड सपरेशन ऑफ फैक्ट्स. अगर आपका फ्रॉड का इंटेंशन कुछ भी नहीं था तो अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज ₹10,000 और 10% ऑफ टैक्स ड्यू, whichever is higher. और अगर आपका फ्रॉड का इंटेंशन था तो पेनल्टीज ₹10,000 और जो भी टैक्स ड्यू है वो, whichever is higher. नाउ सेक्शन 122(3. पहले हमने देख लिया 122(1) में 21 ऑफेंसेस थे, 122(2) में 2 ऑफेंसेस, और सेक्शन 122(3 यहाँ पे 5 ऑफेंसेस है. फर्स्ट, एड्स इन 21 ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 122(1. मतलब जो 21 ऑफेंसेस पहले बताए गए थे उसके लिए, वो ऑफेंस करने के लिए मदद करना. सेकेंड इज फेल्स टू अपीयर बिफोर ऑफिसर व्हेन समन इज इशूड और प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट. थर्ड इज फेल्स टू इशू इनवॉइस और फेल्स टू अकाउंट फॉर इनवॉइस, मतलब इनवॉइस अकाउंट नहीं करना और इनवॉइस इशू नहीं करना. फोर्थ एंड फिफ्थ रिलेटेड टू सर्विसेज एंड गुड्स. पहले फोर्थ है रिसीव्स और सप्लाइज सर्विसेज knowing that it's in contravention of provision, and fifth is related to goods. It's acquiring, possession of goods or transporting, depositing, supplying or dealing or purchasing the goods knowing that they are liable for confiscation. तो कौन से 5 ऑफेंसेस है? पहले तो 21 ऑफेंसेस के लिए मदद करना. सेकेंड इज फेल्स टू अपीयर बिफोर ऑफिसर व्हेन समन इज इशूड. थर्ड इज इशूइंग, फेलियर टू इशू इनवॉइस और फेलियर टू अकाउंट फॉर इनवॉइस. Fourth is related to providing service, receiving services or supplying services in contravention. And fifth is dealing in any manner with goods knowing that they are liable for confiscation. And the amount of penalty may extend to ₹25,000. It's not $25,000. It may extend to 25,000. Now, section 123. Penalty for failure to furnish the information written. अब जिस पर्सन को इंफॉर्मेशन रिटर्न सबमिट करना होता है उसको सेक्शन 150 सबसेक्शन 1 और 2 में जो टाइम बताया गया है उसके अंदर ही रिटर्न फर्निश करना होता है. अगर उसने उस टाइम के अंदर रिटर्न फर्निश नहीं किया तो कमिश्नर में इशू द नोटिस टू सच अ पर्सन अंडर सेक्शन 150 सबसेक्शन 3 टू फर्निश द इंफॉर्मेशन रिटर्न विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस. मतलब इंफॉर्मेशन रिटर्न अगर आपने फर्निश नहीं किया है विद इन टाइम तो आपको नोटिस इशू होगा अंडर सेक्शन 153, और उस नोटिस में जो भी टाइम लिमिट दिया है उसके अंदर आपको रिटर्न फर्निश करना है. बट अ पर्सन फेल्स टू फर्निश सच अ रिटर्न विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन द नोटिस, देन ही इज लायबल टू पेनल्टी ऑफ ₹100 पर डे ड्यूरिंग विच द फेल्यूर कंटिन्यूज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ₹5,000. आपका मैक्सिमम फाइन 5,000 ही होगा. नाउ नेक्स्ट, पेनल्टी फॉर फेल्यूर टू फर्निश द स्टैटिस्टिक्स, सेक्शन 124. अंडर दिस सेक्शन, इफ एनी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन और रिटर्न अंडर सेक्शन 151 बट इफ फेल्स टू फर्निश विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, or if he willfully furnishes any false information, then he shall be punishable with the fine which may extend to ₹10,000. मतलब penalty for failure to furnish statistics normally it may extend to ₹10,000, but if such offense continues he shall be punishable with further fine which may extend to 100 per day after the first day during which offense continues, and the maximum is ₹25,000. So you should remember these 2 sections, 123
इंफॉर्मेशन रिटर्न 100 पर डे, मैक्सिमम 5000. एंड ये है सेक्शन 124, पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश स्टैटिस्टिक्स. नाउ सेक्शन 125, जनरल पेनल्टी. If penalty is not specified separately under this act or rules made thereunder, then such a person is liable to the penalty which may extend to rupees 25,000. मतलब जनरल पेनल्टी विल एक्सटेंड टू रुपीज 25,000. अब है सेक्शन 126, जनरल डिसिप्लिन से रिलेटेड टू पेनल्टी, और इस एरिया में क्वेश्चंस आते ही है. तो हियर देयर आर 8 पॉइंट्स टू रिमेंबर. फर्स्ट इज नो पेनल्टी शैल बी इम्पोज्ड बाय द ऑफिसर. पेनल्टी आपके ऊपर इम्पोज नहीं होगी अगर आपके माइनर ब्रीचेस है तो. सेकेंड इज देयर आपका ब्रीच है रिलेटेड टू प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लॉ. एंड थर्ड इज error or omission is easily rectifiable, that is, it is apparent on the face of record and it's made without fraudulent intent or gross negligence. तो कौन से 3 सिचुएशन में आपके ऊपर पेनल्टी नहीं होगी अगर आपका ब्रीच माइनर है तो. सेकेंड इज ब्रीच इज रिलेटेड टू प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ. एंड थर्ड इज error or omission is easily rectifiable and without fraudulent intent or gross negligence. तो माइनर ब्रीचेस कौन से होते हैं? where the amount of tax involved is less than rupees 5,000. ये MCQ वाला क्वेश्चन है. अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व इज लेस देन रुपीज 5,000. तो ये माइनर ब्रीच होगा और आपके ऊपर पेनल्टी नहीं आएगी. बट दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल इफ द पेनल्टी इम्पोज अंडर दिस एक्ट इज फिक्स्ड सम और फिक्स्ड परसेंटेज. अगर पेनल्टी कोई फिक्स्ड अमाउंट है और फिक्स्ड परसेंटेज है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा. ये लास्ट पॉइंट है वैसे तो. अब देखते हैं और कौन से पॉइंट्स आते हैं इसमें. पेनल्टी डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस. अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शुड बी गिवन टू द पर्सन. सिक्स्थ इज ऑफिसर शुड स्पेसिफाई नेचर ऑफ द ब्रीच एंड द एप्लीकेबल लॉ. ऑफिसर को बताना होगा शो कॉज नोटिस में कि आपका नेचर ऑफ ब्रीच कौन सा है और एप्लीकेबल लॉ कौन सा है. सेवेंथ इज इफ द पर्सन वॉल्यूंटरीली डिस्क्लोजेस एनी ब्रीच ऑफ द लॉ, then proper officer should consider this as a mitigating factor while determining penalty. मतलब आपने आप ही पर्सन ने बताया है कि ब्रीच ऑफ लॉ हुआ है तो प्रॉपर ऑफिसर शुड कंसिडर दिस एज अ मिटिगेटिंग फैक्टर while determining penalty. एंड एट्थ तो मैंने बताया ही है, अगर आपका फिक्स्ड सम और फिक्स्ड परसेंटेज है पेनल्टी तो दिस सेक्शन विल नॉट एप्लीकेबल. नाउ सेक्शन 127, ये एक चिरकुट सेक्शन है. पावर टू इम्पोज पेनल्टी इन सर्टन केसेस. अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि पेनल्टी पर्सन इज लायबल टू द पेनल्टी एंड द पर्सन इज नॉट कवर्ड इन एनी प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 62, 63, 64, 73, 74, 129, 130, then he may issue order levying penalty after giving the opportunity of being heard. इन शॉर्ट, अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि पर्सन इज लायबल टू पेनल्टी एंड उसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स नहीं है तो ही मे इशू द ऑर्डर लेविंग पेनल्टी. अब है सेक्शन 129, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस इन ट्रांजिट. अगर किसी कारण आपके गुड्स और कन्वेंस सीज किया है और डिटेन किया है तो वो रिलीज करेंगे आफ्टर पेमेंट ऑफ पेनल्टी एंड टैक्स. तो यहाँ पे 2 तरीके हैं. पहले व्हेन द ओनर कम्स फॉरवर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ पेनल्टी एंड टैक्स, and second is when the owner doesn't come forward for payment of tax and penalty. तो फर्स्ट पहले हम देखते हैं जब ओनर आता है पेमेंट करने के लिए, then he is required to pay tax plus penalty. पर पेनल्टी कितनी होगी? पेनल्टी इज 100% ऑफ टैक्स पेएबल ऑन सच गुड्स. पर आपके गुड्स एग्जम्प्ट है तो टैक्स तो नहीं आएगा, तो उस केस में पेनल्टी आएगी 2% ऑफ वैल्यू और ₹25,000 whichever is lower. डिटेंशन और सीजर में whichever is lower आता है. So if your goods are taxable, then you are required to pay tax plus penalty equal to 100% of tax payable. And if your goods are exempted, then penalty will be 2% of value of such goods or ₹25,000 whichever is lower. Or if you are not paying, then you are required to furnish a security equivalent to above amount. Then only you will get your goods. Now second case, when the owner doesn't come forward for payment of tax.
In this case, the goods will be released only after the payment of tax plus penalty which is equal to 50% of value of such goods. पहले था 100% ऑफ टैक्स, अब है 50% ऑफ वैल्यू. पहले मतलब ओनर कम्स फॉरवर्ड के केस में, और अब है 50% ऑफ वैल्यू. अगर आपके गुड्स एग्जम्प्ट है तो पेनल्टी विल बी 5% ऑफ वैल्यू और ₹25,000 विच एवर इज लोअर. और अगर आप अभी पे नहीं कर रहे हैं तो यू आर रिक्वायर्ड टू फर्निश द सिक्योरिटी ऑफ अबव अमाउंट. तो पॉज करके आप अपने आप एक बार रीड कर दीजिए सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस. अब इस डिटेंशन के रिलेटेड और कुछ पॉइंट्स देखते हैं. फर्स्ट इज गुड्स और कन्वेंस आफ्टर डिटेंशन शैल बी रिलीज्ड ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी. ये तो हो ही गया. सेकेंड इज नो गुड्स और कन्वेंस शैल बी डिटेन्ड विदाउट सर्विंग ऑर्डर ऑफ डिटेंशन और सीजर. पहले ऑर्डर इशू करना ही आपको. थर्ड इज इफ द इनवॉइस इज accompanied with consignment, then who will be the owner? कंसाइनर और कंसाइनी डीम टू बी द ओनर. और अगर कंसाइनमेंट के साथ इनवॉइस नहीं है तो प्रॉपर ऑफिसर शैल डिटरमाइन हु शुड बी द ओनर ऑफ सच गुड्स. तो ये एक इम्पॉर्टेंट है. अगर आप कंसाइनमेंट के साथ इनवॉइस है तो कंसाइनर और कंसाइनी डीम टू बी द ओनर, दोनों में से कोई भी. और सेकेंड इज इफ द इनवॉइस इज नॉट accompanied with the consignment, then the proper officer will determine who is the owner. जब प्रॉपर ऑफिसर नोटिस इशू करता है तो ही शुड स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी एंड देन ओनली ही कैन इशू द ऑर्डर. मतलब टैक्स और पेनल्टी पहले उसको बताना है और देन ओनली ही कैन इशू द ऑर्डर. अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू बी गिवन. सिक्स्थ इज ऑन पेमेंट ऑफ दिस टैक्स एंड पेनल्टी all the proceedings shall be deemed to be concluded. Seventh is if it is not paid within 14 days of detention or seizure, आपके goods डिटेन करने के बाद आपने 14 days में अगर नहीं पे किया तो सेक्शन 130 विल अप्लाई. मतलब आपके गुड्स कॉन्फिस्केट हो जाएंगे. मतलब डिटेंशन के बाद आपको 14 days का टाइम है, उसके अंदर ही आपको ये टैक्स पेनल्टी और सिक्योरिटी फर्निश करना है. अगर आपके हजार्डस और पेरिशेबल गुड्स है 14 days can be reduced by proper officer. Now section 130 confiscation of goods or conveyances and उसकी पेनल्टी. अभी हमने देखा कि गुड्स डिटेन किए हैं और 14 days में अगर आपने टैक्स पेनल्टी नहीं पे किया तो आपके गुड्स कॉन्फिस्केट हो जाएंगे. Now in section 130 they have mentioned 5 cases in which the goods are liable to confiscation. First is he supplies or receives any goods in contravention to evade the tax. Contravention है ये पहला. Second is uses the conveyance in contravention of provisions or rules unless the owner proves that it was used without his knowledge. पहले है goods receive और supply किए हैं in contravention. Second is use of conveyance in contravention. Third is contravention of provisions or rules to evade the tax. Fourth is he doesn't account for any goods. Fifth is supplies goods which are liable to tax without obtaining the registration. तो पहले तीन है contravention वाले. Supplies or receives goods in contravention. Second is use of conveyance in contravention. Third is contravention of rules and provisions. Fourth is doesn't account for any goods for which he is liable to tax. And fifth is supplies the goods without obtaining registration when he is liable to tax. In these cases all such goods or conveyance liable to the confiscation and इसके लिए पेनल्टी है, पेनल्टी अंडर सेक्शन 122 वाली. पर यहाँ पे ओनर को एक ऑप्शन है टू पे द फाइन इन ल्यू ऑफ द कॉन्फिस्केशन. ये फाइन पे करेंगे तो आपका कॉन्फिस्केशन नहीं होगा. ये कोई पेनल्टी नहीं है, ये फाइन है, फाइन. तो अगर आपके गुड्स कॉन्फिस्केट किए हैं तो फाइन कितनी होगी? फाइन शैल बी लेस देन और इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स कॉन्फिस्केटेड माइनस टैक्स चार्जेबल देयरऑन. मतलब जो गुड्स कॉन्फिस्केट करने वाले हैं उसकी मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स, इस अमाउंट से ज़्यादा फाइन नहीं होनी चाहिए. एंड फाइन एंड पेनल्टी शैल नॉट बी लेस देन पेनल्टी अंडर सेक्शन 129(1). मतलब ये जो डिटेंशन वाली पेनल्टी थी उससे कम नहीं होनी चाहिए. और इफ यू आर रिक्वायर्ड टू पे द फाइन in lieu of the confiscation of conveyance, then fine is equal to
टैक्स पेएबल ऑन द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड, जो भी टैक्स पेएबल है ऑन द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड वो आपकी फाइन है, और ये इज इक्वल्स टू है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एक बार पढ़ लीजिए। नाउ अदर पॉइंट्स। फर्स्ट, इवन दो द ओनर ऑफ गुड्स or conveyance pays the fine, in addition he is liable to pay the tax, penalties and charges. आपने ये कॉन्फिस्केशन वाला फाइन पे कर दिया है, लेकिन आपको टैक्स, पेनल्टीज एंड चार्जेस जो भी है वो पे करनी ही है। सेकेंड इज टाइटल ऑफ कॉन्फिस्केटेड गुड्स विल वेस्ट टू द गवर्नमेंट। जब ओनर को टाइम दिया है कि टू पे द फाइन इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन विद इन द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 months and he doesn't pay and such goods are not required in any further proceedings, then the officer can dispose it and deposit the proceeds with the government. अब है सेक्शन 132, पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, अनदर खतरनाक सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो इस सेक्शन में 12 ऑफेंसेस बताए गए हैं। हमने 122 देखा, उसमें 21 ऑफेंसेस थे और 21 के अपोजिट 12। यहाँ पे 132 में 12 ऑफेंसेस है। यहाँ भी हमने बाइफर्केट किया है। फर्स्ट इज फेक और रॉन्ग इनवॉइसेस। यहाँ पे पहला है सप्लाई विदाउट इनवॉइस एंड सेकेंड इज इनवॉइस विदाउट सप्लाई। सेकेंड इज रिलेटेड टू फ्रॉड। यहाँ पे ही सबमिट्स द फॉल्स इंफॉर्मेशन, इट इज फॉल्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फेक अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स की वो फॉल्स इंफॉर्मेशन। फोर्थ इज फेल्स टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन और सप्लाइज फॉल्स इंफॉर्मेशन। नाउ थर्ड हेडिंग इज रिलेटेड टू टैक्स इवेजन। यहाँ पे he collects the GST but doesn't submit it to government within 3 months, obtains refund by fraud, ITC without actual receipt of goods. Now our fourth heading is related to supply or transport. पहले है सर्विसेज रिलेटेड और सेकंड है गुड्स रिलेटेड। पहले रिसीव्स और सप्लाइज सर्विसेज इन कॉन्ट्रावेंशन एंड सेकंड इज acquires possession of the goods knowing that they are liable for confiscation. Others में है 3 पॉइंट। obstruct the officer during discharge of duties, second is tampers or destroys with the evidence or documents, and third is attempts to commit or abets commission of above offenses। मतलब ये offenses करने के लिए मदद करता है। So these are the 12 offenses. So if any person commits these offenses, he shall be punishable with the fine penalty जो भी है, but with the previous sanction of commissioner. Now see this table. In first column offenses has been mentioned, second is amount involved, third is punishment. Imprisonment में यहाँ पे है minimum 6 months in the absence of special and adequate reasons to the contrary, and extends to मतलब minimum 6 months तो है ही, और मैक्सिमम आपका हो सकता है ये जो नीचे ईयर्स दिए हैं उस ईयर्स तक आपका मैक्सिमम फाइन पनिशमेंट हो सकता है। नाउ फर्स्ट, टैक्स इवेडेड, ITC रॉन्गली अवेल्ड, रिफंड रॉन्गली टेकन। जो भी आपका ये फ्रॉड वाला अमाउंट है, अगर ये मोर देन 5 crores है तो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट कितनी है? 5 years विथ फाइन। सेकेंड, आपका अमाउंट है more than 2 crores but less than or equals to 5 crores, then imprisonment maximum 3 years with fine. और अमाउंट more than 1 crore but less than equal to 2 crores है तो imprisonment maximum 1 years with fine. तो ये डिफरेंस आप याद रखना। 5 के सामने 5 है, 2 and 5 का डिफरेंस 3 तो सामने 3 है, 2 and 1 का डिफरेंस 1 तो सामने 1 है। Now, second, commits or abets the commission of an offense specified in clause F, G, J. ये आप बुक में देख लेना। तो इसके लिए पनिशमेंट है 6 months और फाइन और बोथ। थर्ड, सेकेंड एंड एवरी सब्सिक्वेंट ऑफेंस अंडर सेक्शन 132। अगर दूसरी बार आपने कोई ऑफेंस किया अंडर सेक्शन 132 में तो अमाउंट कुछ भी हो, आपका पनिशमेंट है मैक्सिमम 5 years विथ फाइन। तो ये टेबल याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट, अनदर इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ दिस चैप्टर, डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजिबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। Cognizable offenses are serious category of the offenses, while non-cognizable are relatively less serious.
कॉग्निजिबल में अरेस्ट हो सकता है विदाउट वारंट, बट नॉन कॉग्निजिबल में नो अरेस्ट विदाउट वारंट। कॉग्निजिबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन हो सकता है विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट, बट नॉन कॉग्निजिबल में नो इन्वेस्टिगेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। कॉग्निजिबल ऑफेंस नॉन बेलेबल है, मतलब आपको बेल नहीं मिलेगा अगर आपने ये सीरियस कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस किए हैं। तो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस बेलेबल है। तो कौन से ऑफेंसेस सीरियस कैटेगरी में हम लेंगे? वेयर द टैक्स इवेडेड, ITC अवेल्ड और रिफंड रॉन्गली टेकन एंड अमाउंट इज मोर देन ₹5 करोड़ है, तो ये सीरियस कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑफेंसेस बताए गए हैं। फर्स्ट इज सप्लाई विदाउट इनवॉइस, सेकंड इज इनवॉइस विदाउट सप्लाई, थर्ड इज ITC availed of above invoice, that is ITC without receipt of goods or services, and fourth is collect the tax but fails to deposit to the government within 3 months। तो ये 4 ऑफेंसेस आपने किए हैं और अमाउंट आपकी मोर देन 5 करोड़ है, तो आपके ये ऑफेंस कॉग्निजिबल है। नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस कौन से है? ऑल ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 132 एक्सेप्ट ये कॉग्निजिबल है वो, एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। नाउ सेक्शन 133 लाइबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स एंड अदर पर्सन्स। ये जो सेक्शन है ये डिपार्टमेंट के ऊपर फाइन लगाता है। डिपार्टमेंट के पास तो लोगों के सभी रिटर्न्स की इंफॉर्मेशन होती है, तो ये लोग अगर विलफुली डिस्क्लोज करते हैं इंफॉर्मेशन अदरवाइज देन इन एग्जीक्यूशन ऑफ देयर ड्यूटीज, देन दे आर लाइबल टू इम्प्रिजनमेंट और पेनल्टी और बोथ। पर ये कितनी होगी? इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड टू 6 months और फाइन एक्सटेंड टू 25,000 और बोथ। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है वो पर्सन तो प्रीवियस सैंक्शन चाहिए गवर्नमेंट का, और अगर गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो प्रीवियस सैंक्शन चाहिए कमिश्नर का। अब है सेक्शन 135 प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल स्टेट, कल्पेबल मेंटल स्टेट। अब ये कल्पेबल मेंटल स्टेट क्या है? इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर द एक्ट इज इंटेंशनल, जानबूझ के किया है फ्रॉड। सेकेंड इज द एक्ट एंड इम्प्लीकेशंस आर अंडरस्टूड एंड कंट्रोलेबल, उसको उसके परिणाम पता है। थर्ड, द पर्सन कमिटिंग द एक्ट वॉज नॉट कोर्स्ड एंड इवन ओवरकम्स हर्डल्स टू एक्ट कमिटेड, मतलब उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था ये एक्ट करने के लिए। फोर्थ इज द पर्सन बिलीव्स और हैज अ रीजन टू बिलीव दैट एक्ट इज कॉन्ट्ररी टू द लॉ, उसको पता है कि ये कॉन्ट्ररी टू द लॉ है, तो इसको कहते हैं कल्पेबल मेंटल स्टेट। तो ये सेक्शन क्या बताता है? अगर किसी भी प्रोसिक्यूशन में कल्पेबल मेंटल स्टेट required है on the part of accused, then the court shall presume the existence of such mental state। मतलब कोर्ट ये मान लेगा कि ये कल्पेबल मेंटल स्टेट से किया है, और ये accused की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू प्रूव दैट इट वॉज नॉट डन विद द सच मेंटल स्टेट। सो ये accused को प्रूव करना होगा कि ये उसने कल्पेबल मेंटल स्टेट से नहीं किया है। सो दिस वॉज सेक्शन 135, इट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। Now section 136 relevancy of statements under certain circumstances. So this section states that in response to any summon, if any person issues any statement and such statement is signed by such a person on appearance, then this statement will be relevant even though such a person is dead or cannot be found, and such a statement is relevant when the person who made the statement is examined as a witness। तो ये statement relevant है even though the person dies, and अगर एग्जामाइन करना है एज अ विटनेस तभी ये statement relevant है। अब है offenses by the companies, section 137। यहाँ पे offense is committed by the company means a body corporate and includes firm और AOP। तो यहाँ पे गिल्टी कौन है? कंपनी है और पर्सन इंचार्ज आर गिल्टी ऑफ ऑफेंसेस। डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, अदर ऑफिसर्स आर गिल्टी इफ इट्स मेड विद देयर कंसेंट और ड्यू टू देयर निग्लिजेंस। अगर उनका कंसेंट है उस ऑफेंस के लिए और ऑफेंस इज कमिटेड ड्यू टू देयर निग्लिजेंस, देन दे आर ऑल्सो गिल्टी ऑफ ऑफेंसेस अलॉन्ग विथ कंपनी। अब फर्म के केस में कौन गिल्टी होगा? पार्टनर, HUF के केस में कर्ता, और ट्रस्ट के केस में मैनेजिंग ट्रस्टी। इफ द पर्सन प्रूव्स दैट द ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट देयर नॉलेज और
they have exercised due diligence to prevent the commission of such offense, then they are not liable to any punishment. So this was the extract of section 137. Now the last section of this topic and another important section of this topic, compounding of offenses, section 138. Compounding can be done either before or after the institution of prosecution. इन सिंपल लैंग्वेज कंपाउंडिंग का मतलब आपका जेल जाना और आपके प्रोसिक्यूशन से आप बच जाओगे अगर आप मॉनेटरी कंसिडरेशंस गवर्नमेंट को पे करोगे तो इन सब से छूटने के लिए आप जो गवर्नमेंट को पे करोगे उसको कहते हैं कंपाउंडिंग अमाउंट. तो यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग इन एनी केस अदर देन दिस 7 केसेस. तो ये जो 7 बताए गए हैं केसेस, इसके अलावा जो भी है उसके लिए आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा. सिर्फ इस 7 चीज़ों में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा. फर्स्ट, ये क्या बताता है, अगर आपने सेक्शन 132(1) में जो A to F क्लॉजेस है उसमें अगर आपने पहले ऑफेंस किया है और उसका पहले कंपाउंडिंग ले लिया है तो फिर से आप वही ऑफेंसेस पे कंपाउंडिंग नहीं ले सकते. मतलब A to F वाले ऑफेंसेस के लिए आपको फिर से कंपाउंडिंग नहीं मिलेगा. सेकेंड है एडिंग और अबेटिंग द ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन क्लॉज A to F ऑफ सेक्शन 132(1). तो इस ऑफेंसेस के लिए आपने पहले कंपाउंडिंग लिया है तो आपको फिर से कंपाउंडिंग नहीं मिलेगा. थर्ड इज एनी ऑफेंस अदर देन अबव ऑफेंसेस एंड वैल्यू ऑफ द सप्लाईज मोर देन ₹1 crore है और you have taken the benefit of compounding earlier in respect of the said offenses, then you will not get any benefit of compounding again. मतलब आपने पहले कंपाउंडिंग ले लिया था और अभी आपने जो ऑफेंस किया है उसकी अमाउंट मोर देन ऑफेंस की नहीं, वैल्यू ऑफ सप्लाईज की अमाउंट मोर देन 1 CR है तो आपको फिर से नहीं बेनिफिट मिलेगा कंपाउंडिंग का. फोर्थ इज द पर्सन हु हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज ऑल्सो एन ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ. मतलब such act is considered as an offense under 2 laws, then you will not get the benefit of compounding. Fifth, person has been convicted for an offense. Means convicted person cannot take the benefit of compounding. Next, you have committed an offense under section 132 clauses G, J, K. तो बुक में आप एक बार ये सेक्शन देख लीजिए. And last is any other offense as may be prescribed. Next point, compounding shall be allowed only after making payment of tax, interest and penalty. And compounding में GST Act के अंदर जो भी proceedings है वो सब बंद होते हैं after compounding. But if there are any proceedings under any other law, then the provisions of this section shall not affect that proceedings under any other law. अब है कंपाउंडिंग अमाउंट, इंपॉर्टेंट एरिया. यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई किया है मिनिमम लिमिट एंड द अपर लिमिट. फर्स्ट इज द मिनिमम लिमिट. इट इज द हायर ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स. फर्स्ट इज 50% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और ₹10,000. मिनिमम लिमिट क्या है? 50% ऑफ टैक्स और ₹10,000 विच एवर इज हायर. एंड अपर लिमिट क्या है? 150% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और ₹30,000. जो भी मिनिमम लिमिट है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट आएगा आपका. ऑन पेमेंट ऑफ सच अ कंपाउंडिंग अमाउंट, नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी इनिशिएटेड अंडर GST Act and any existing proceedings relating to such offense shall stand abated. So, congratulations friends, you have completed successfully the revision of this chapter. Watch this video 2-3 times and you will be the master of this chapter. To watch more videos like this, please subscribe to my channel.